Good morning, dear students. Welcome to e-learning class of accountancy. Today is your lecture number 40, and in this lecture, I am going to cover some topics of chapter 6, dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm. Some topics has been explained by sir in the previous lecture, and in this lecture, I am going to explain some more topics of dissolution of partnership firm. These topics are the topics which are covered in the lecture are accounting procedure on dissolution of firm, entries in realization account, format of realization account, and on the basis of this format, question number 7 will be solved in this lecture. So see beta, number 1, accounting procedure of dissolution of partnership firm. You all know, in order to dissolve, what is dissolution beta? Dissolution क्या है? Dissolution of partnership firm हम किसे कहते हैं? Whenever the partners do not want to carry the business or continue the business, then they have a procedure of dissolving the partnership firm. Dissolution of partnership firm means that the firm closes down its books and comes to an end. कि फर्म अपनी बुक्स को क्लोज कर रही है और का एंड पर आ रही है, एंड कर रही है अपना पूरा सारे अकाउंट को. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर सेटल्ड. इज इट क्लियर बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है कि फर्म क्लोज डाउन हो रही है, अपनी बिजनेस को क्लोज डाउन कर रही है और अपने सारे अकाउंट्स को सेटल कर रही है, एसेट्स को सोल्ड कर रही है, लाइबिलिटीज़ को पेड कर रही है, और रिमेनिंग अमाउंट से अकाउंट जो पार्टनर्स का अकाउंट है वो सेटल्ड हो रहा है. दैट इज़ नोन एज डिसोल्यूशन. तो डिसोल्यूशन को करने के भी प्रोसीजर हैं. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैव एन अकाउंटिंग प्रोसीजर. इन अकाउंटिंग प्रोसीजर सबसे फर्स्टली यू हैव टू मेंटेन रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट, नंबर 3 partners capital account, and number 4 cash or bank account. In order to close the books of the firm on dissolution, the following account are open in the order given below. इस order में आपको ये following account बनाने पड़ते हैं. Whenever you are doing numericals of dissolution of partnership firm, you have to make realization account, then partners loan account, then partners capital account, and cash or bank account. Number 1 is realization account. What is realization account? क्या है realization account? A realization account is opened for disposing of all the assets of the firm and making payment to all the creditors. realization account इसलिए open होता है ताकि हम सारी assets को dispose of कर सकें और अपनी liabilities को paid off कर सकें, creditors को payment दे सकें. realization account is a nominal account. realization account nominal account के रूल पर बेस करता है. realization account is a nominal account and the object of such an account is to find out the profit or loss on realization of assets and payment of liabilities. realization account क्या है आपका? nominal account है. उसका मीनिंग क्या है आपका? कि फाइंड आउट करना प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, कि हम एसेट्स को रियलाइज़ करके और उसके बाद लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद क्या प्रॉफिटेबिलिटी बची या क्या लॉस हुआ फर्म को, उसको फाइंड आउट करने के लिए वी मेक रियलाइजेशन अकाउंट. एंट्रीज इन रियलाइजेशन अकाउंट आर मेड इन द फॉलोइंग मैनर. जो एंट्रीज होती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में वो इस तरीके से करी जाती है. नंबर 1 फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट. जब हम एसेट्स को क्लोज कर रहे होते हैं तो एंट्रीज आर ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सेप्ट कैश एंड बैंक आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट एट बुक वैल्यू. बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू साइड में जितनी भी एसेट्स हैं फर्म की एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ करके बाकी सारी एसेट्स को बुक वैल्यू पे हम ट्रांसफर कर देते हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और उसकी एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू. While transferring the assets to this account, the following point should be kept in mind. जब हम assets को transfer करते हैं तो सबसे पहला point होता है on those assets which can be converted into cash are transferred to this account. वो assets जो cash में convert हो जाती हैं उसको हम realization account में transfer करते हैं. Fictitious assets such as accumulated losses like debit balance of P&L account, deferred revenue expenditure like debit balance of advertisement suspense account are not included in definition of assets. वो assets जिसको हम cash में convert कर देते हैं, जो market में sold off हो सकती हैं एंड कैन जनरेट कैश, उसको ही हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. जैसे आप कोई भी ऐसी एक्यूमुलेटेड एसेट या फिक्टिशियस एसेट जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं या कोई फिक्टिशियस एसेट्स, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कि आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है. इन दोनों का ट्रीटमेंट जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है. इज इट क्लियर बेटा? नाउ सी द सेकेंड पॉइंट.
सेकंड पॉइंट में जो आपके एंट्रीज आ जाती है वो कि आपके पार्टनर्स, और इसके लिए जो हम जो एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिए। अब जो तुम्हारा फिक्टिशियस एसेट्स बची जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट हो गया या डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो एंट्रीज पास होती हैं दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू profit and loss account to deferred revenue expenditure account such as advertisement suspense account. Deferred revenue expenditure account में advertisement suspense account होता है तो profit and loss account डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि ये लॉस है फर्म का, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये किस में डिवाइड हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाता है। इफ़ देयर इज एग्जिस्ट अ प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट, अगर किसी भी एसेट के अगेंस्ट में प्रोविजन है जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन क्रिएट होता है जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, द एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट द इट्स ग्रॉस फिगर एंड सच प्रोविजन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा जैसे तुम्हारे बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन है, उसके ऊपर प्रोविजन भी चार्ज कर रखा है, तो डेटर्स अपनी बुक वैल्यू पे टू साइड डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर्ड होंगे और जो भी प्रोविजन उसके ऊपर चार्ज हो रखा है प्रोविजन विल बी ट्रांसफर टू बाय साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इज इट क्लियर बेटा? और एंट्री हो जाएगी इसके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्योंकि डेटर्स टू डेटर्स अकाउंट वो डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट वो क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में उस पर प्रोविजन ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 50,000 के डेटर्स है, 1,000 उसका प्रोविजन चार्ज हुआ है, तो 50,000 का जो डेटर है उसकी अमाउंट आपकी डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में टू डेटर्स अकाउंट लिख करके पोस्ट कर दोगे और जो उस पर प्रोविजन आया 1,000 का उसको आप बाई साइड में मेंशन कर देंगे बाय प्रोविजन 1,000 रुपीज़। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोइंग एंट्रीज आर इज पास फॉर ट्रांसफर ऑफ सच प्रोविजन। और प्रोविजन को ट्रांसफर करने के लिए एंट्री पास होती है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, किसी भी तरीके का कुछ भी आपका चार्ज हो रखा है, चाहे डेप्रिसिएशन है, चाहे बैड डेब्ट्स है, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इन सबको हम क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो ये टू रियलाइजेशन अकाउंट इसकी एंट्री पास हो जाती है, वेरियस रिजर्व एंड प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये मैंने आपको अभी बताया था कि कैश और बैंक बैलेंस को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और सिर्फ उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम सेल करके कैश को जनरेट कर सकते हैं। फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ अकाउंट, अगर हमें लाइबिलिटी को क्लोज करना है तो हमारी जो एंट्री पास होती है दैट इज सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफ़र ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट, हम सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री इज सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल बेटा, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑन द बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। किस में ट्रांसफ़र करते हैं? ऑन द बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और उसकी एंट्री हो जाती है सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू realization account, transfer of sundry liabilities to realization account. Following points should be kept in mind while transferring the liabilities to the account. liabilities को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें फॉलोइंग पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। नंबर 1, ओनली दोज लाइबिलिटीज़ विच रिलेट टू थर्ड पार्टी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हमें थर्ड पार्टी को देना है, थर्ड पार्टी वो आउटसाइडर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, कोई आउटसाइड लोन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गई, या पार्टनर्स का वाइफ लोन है, इन सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। नंबर 2, बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर होता है ये। नंबर 3, पार्टनर्स लोन अकाउंट टू आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स का अगर वाइफ का लोन या उसके किसी फैमिली मेम्बर से अगर कोई लोन लिया है फर्म में तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी मानी जाती है, तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर पार्टनर्स का कोई भी लोन है तो उसको हम सेपरेटली अकाउंट प्रिपेयर करके उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। पार्टनर्स लोन इज़ टू बी पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी बट बिफोर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के पेमेंट से पहले हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं। इट मीन्स ये भी हमारी एक लाइबिलिटी है, तो सबसे पहले हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट, इट मीन्स क्या होता है बेटा कि जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके बाद बिफोर मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम सबसे पहले जो है पार्टनर्स का लोन अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करते हैं और इसको पेमेंट करते हैं, उसके बाद ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है।
इज इट क्लियर बेटा? देन उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सच एज जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस और P&L अकाउंट आर ऑल्सो नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी आपका जैसे रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, या आपका रिजर्व फंड है, या क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड आता है। और अगर कोई जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। दीज आर ऑल्सो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। और एंट्री इसकी पास हो जाती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, और इसके लिए ये आ गया तुम्हारा बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। नाउ सी एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अगर हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं, एसेट्स रिलीज होती है। एसेट्स रिलीज होने का मतलब क्या होता है? एक तो आपने अभी मैंने आपको एंट्री बताई जिसमें आप एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं ऑन द बुक वैल्यू। जो ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट्स गिवन होती हैं उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर देते हैं। उनमें से जो भी एसेट्स सोल्ड ऑफ होती हैं मार्केट में, जो भी एसेट चाहे वो मार्केट में सोल्ड ऑफ हो रही है क्या, या कोई और पार्टनर उसको परचेज कर ले रहा है, तो जो भी एसेट सोल्ड ऑफ होती है, तो जो एसेट सोल्ड ऑफ होने के बाद वैल्यू को रिलीज करती है उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। उसको हम क्या कहते हैं? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो वो ट्रांसफर हो जाती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में ऑन द बाई साइड। और एंट्री अगर वो कैश में आपकी सेल ऑफ हुई है तो एंट्री आ जाती है उसकी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट सोल्ड फॉर कैश। सेम वैसे ही अगर आपको किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले ली है तो हम उसको कैश बैंक की जगह पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या होती है? एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, और जब कैश में सेल ऑफ हुई है तो एसेट सोल्ड फॉर कैश। देन इफ एन एसेट इज गिवन अवे टू द क्रेडिटर इन पार्ट ऑफ फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। और अगर आपने कोई भी एसेट को क्रेडिटर को दे दिया है अगर आपके पास फर्म के पास पैसा नहीं है तो फर्म ने क्या करा, एसेट को दे दिया क्रेडिटर्स को उसकी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। उसने इंस्टीड ऑफ गिविंग कैश उसने क्रेडिटर्स को कुछ एसेट दे दिया, तो जितना पार्ट का एसेट उसने क्रेडिटर को दिया है उस एसेट को हम एसेट रिलाइज में शो नहीं करते हैं। वो क्रेडिटर्स का पेमेंट देने के लिए सेटल डाउन हो गई है, सेटलमेंट हो गया उसका। ठीक है बेटा? और उसका जो है बैलेंस जितना भी होता है एसेट्स का उसको हम शो कर देते हैं इन द रियलाइजेशन अकाउंट। नो एंट्री इज पास फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू द क्रेडिटर। अगर किसी भी क्रेडिटर को कोई भी एसेट दी जा रही है तो उसकी कोई भी एंट्री बुक्स में पास नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ द अमाउंट ड्यू टू अ क्रेडिटर इज ₹1 लाख एंड ही एग्री टू टेक स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 80,000 एंड 70,000 एंड द बैलेंस इन कैश, द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास। अगर देखिए आपके क्रेडिटर की अमाउंट 1 लाख थी, 1 लाख में से उसको जो है 70,000 का स्टॉक दे दिया जिसकी बुक वैल्यू 80 थी लेकिन दिया 70,000 में गया उसके पास। तो फॉलोइंग एंट्री सबसे पहले क्या हो जाएगी? 1 लाख में से 70,000 माइनस कर दोगे, वो सेटलमेंट हो गया उसका। और जो रिमेनिंग बचा 30,000 वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है? और उसके अलावा इफ़ द क्वेश्चन इज silent about the realization of an asset, it is assumed that the asset has not been released. asset जब तक मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में कि एसेट को सोल्ड ऑफ करा है तब तक एसेट रिलीज नहीं मानी जाती है। नाउ नंबर 4 एंट्रीज ऑफ पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। अगर कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं या आपकी जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं उसका पेमेंट करना है, पहले तो लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पे नोट करेंगे ऑन द बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सेम एसेट्स को बुक वैल्यू पे नोट करेंगे ऑन द टू साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में। फिर एसेट्स को अगर आपने सोल्ड ऑफ कर दिया है तो जो भी अमाउंट सोल्ड ऑफ की आ रही है वो बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आती है, और जो भी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट देते हैं उसको हम डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है? तो एंट्रीज ऑफ पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड व्हेन लाइबिलिटीज़ आर पेड इन कैश, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। लाइबिलिटीज़ पेड इन कैश, लाइबिलिटीज़ को हमने किस में पेड कर दिया? कैश में पेड कर दिया। व्हेन एनी पार्टनर एग्री टू टेक सम लाइबिलिटी, अगर पार्टनर ले रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स एग्री टू पे द लाइबिलिटी। इज इट क्लियर बेटा? नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। When expenses of realization are paid by a partner on behalf of the firm। अच्छा, इसकी एक लास्ट वाली एंट्री रह गई बेटा, ये देखिए। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट
अबाउट द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इट हैज़ टू बी पेड इन फुल। बेटा क्वेश्चन में मेंशनड है या नहीं मेंशनड है? अगर लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है तो लाइबिलिटीज़ अगर कुछ हैं तो उसका पेमेंट होगा, चाहे क्वेश्चन में मेंशनड होगा या नहीं मेंशनड होगा, तो इट हैज़ टू बी पेड इन फुल। फॉर एग्जांपल बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल गिवन है आपकी बैलेंस शीट में और ये मेंशन नहीं है कि बिल्स पेबल का पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि ऑल द लाइबिलिटीज हैज़ टू बी पेड बिकॉज आपका ये वो है डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन में हम सारी लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करते हैं ऑल द लाइट, तो वो बाई साइड भी आएगी और सेम वैल्यू पर आपके टू साइड में भी शो हो जाएगी। ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट आपका ये देखिए कि फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर फॉर्म ने कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करा है तो उसका पेमेंट भी आपका कैश में होता है या कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आ जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश। Now see next, when expenses of realization are पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। और अगर कोई एक्सपेंसेस रियलाइजेशन, अभी मैंने आपको बताया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कैश में पेड कर दिया तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कोई पार्टनर पेड ऑफ कर रहा है तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द फर्म हैज़ एग्रीड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द पार्टनर towards realization expenses and the partners has to bear the expenses। और अगर फर्म जो है कुछ पेमेंट कर रही है और पार्टनर को एक्सपेंसेस को बियर करना है तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी वट एवर पार्टनर इज पेइंग वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होती है। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बॉन्ड बाय द पार्टनर एंड द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पार्टनर बॉन्ड कर रहा है लेकिन एक्सपेंसेस को फर्म पे कर रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ द partner। No entry will be passed if the expenses are to be borne and paid by the partner out of his pocket। अगर कोई प्राइवेटली पेमेंट कर रहा है, कोई भी पार्टनर अपने पॉकेट से प्राइवेट पेमेंट हो रहा है तो उसकी एंट्रीज हम रियलाइजेशन अकाउंट में या बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं। इफ़ नथिंग इज मैंशनड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इट इज़ अज्यूम्ड दैट द फर्म हैज़ टू मेट द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है और कुछ भी मैंशन नहीं करा है तब भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है एंड इट इज़ पेड इन कैश। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट इज फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लास्ट आ गया रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं, डेबिट साइड और टोटल क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, इट मीन्स हमारे फर्म को लॉस हुआ है। व्हेन क्रेडिट साइड टोटल इज़ मोर एंड डेबिट साइड टोटल इज़ लेस इट मीन्स फर्म को प्रॉफिट हुआ है। और जब फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा तो हम शो कर देंगे एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब लॉस होगा तो एंट्री विल बी रिवर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ सीधा फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, अभी जो मैंने आपको बताया वो उसका ये फॉर्मेट है आपका। फॉर्मेट में अल्पेश सर ने भी समझा दिया था बेटा, मैं भी आपको इसके फॉर्मेट को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। और सीधा फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी एसेट्स है मैंने अभी आपको बताया कि ऑल द एसेट्स एट देयर बुक वैल्यू विल बी ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सी बेटा डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में हमने सारी एसेट्स को शो कर दिया टू ऑल एसेट्स, बैंक बैलेंस एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, इनको छोड़ने के बाद डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और नॉन अकाउंट। इसके अलावा जितनी भी एसेट्स हैं आपकी उनको हम ट्रांसफर कर देंगे एट देयर बुक वैल्यू ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका टू बाय ऑल लाइबिलिटीज़ एक्सक्लूडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। लाइबिलिटीज़ जितनी भी होती हैं जो भी आपकी बैलेंस शीट में गिवन होंगी उस लाइबिलिटीज़ को आप शो कर देंगे एक्सक्लूडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, इसको छोड़ करके बाकी सारी लाइबिलिटीज़ को हम बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट शो करते हैं। देन एसेट्स का अगर लाइबिलिटीज़ अगर एसेट्स अगर पेड ऑफ हो रखी हैं, मतलब एसेट्स अगर रियलाइज हुई हैं, सॉरी नॉट पेड ऑफ, एसेट्स को अगर हमने रियलाइज़ करा है, सोल्ड ऑफ करा है, तो जिस वैल्यू पे सोल्ड ऑफ करा है उसको हम बाई साइड मेंशन कर देंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। और अगर कोई भी प्रोविजन क्रिएट हुआ है ऑन द एसेट तो प्रोविजन भी बाई साइड आ जाएगा बाय प्रोविजन ऑन एसेट। देन अगर आपने कोई लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ करी है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ इट हैज़ टू बी पेड ऑफ वेदर इट इज़ मेंशन इन द बुक्स और नॉट। मेंशन होगा बुक्स में तो जिस वैल्यू पे पेड ऑफ होगी वो आप रियलाइजेशन में शो कर देंगे, और अगर मेंशन नहीं होगा तो आपको सेम वैल्यू पर उसको पेड ऑफ करना है, और इट विल बी ऑन द डेबिट साइड टू बैंक कैश अकाउंट अमाउंट पेड बाय फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है। इसी तरीके से कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी वो भी टू साइड आ जाएगी टू बैंक कैश अकाउंट अमाउंट पेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। देन
कोई एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन है, इट विल बी ऑन द डेबिट साइड। टू बैंक कैश अकाउंट, ये सब कुछ सबका पेमेंट हो रहा है कैश के थ्रू। ये नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसलिए सारे एक्सपेंसेस लॉसेज ऑन द डेबिट साइड है। टू बैंक कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन ऑन द डेबिट साइड। देन पार्टनर्स कैपिटल, अगर इन सारे एक्सपेंसेस को या लाइबिलिटीज़ को पार्टनर पे कर रहा है तो ये एंट्रीज जो तुम्हारी आई हैं, टू बैंक कैश अकाउंट, अमाउंट पेड ऑन डिस्चार्जिंग ऑफ लाइबिलिटी या अमाउंट पेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इसमें से कुछ भी अगर पेमेंट पार्टनर कर रहा है तो इस एंट्री की जगह पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स। इज इट क्लियर बेटा? बाई साइड में आपने ऑल लाइबिलिटीज़ जो ऑन बुक वैल्यू शो कर दी। देन अगर आपके एसेट पे कोई प्रोविजन है वो शो हो जाएगा। देन एसेट जो रियलाइज हुई है अगर कैश में हुई है तो बाय बैंक कैश अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स आ जाएगा। देन उसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो भी हमारा प्रॉफिट है, वो भी बाई साइड आ जाएगा, बाय बैंक कैश अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट। देन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट को टेक ओवर करा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नेम से आ जाएगा। एंड देन उसके अलावा अगर किसी भी तरीके का कोई भी पर इसके बाद जो है आपका टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का काम है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ट्रांसफर्ड हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में। और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का काम है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मेट। और नाउ सी, उसके अलावा जो सेकंड बनाते हैं हम अकाउंट, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल लोन अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले हम क्या मेंटेन करते हैं? पार्टनर्स लोन अकाउंट। इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन एनी लोन टू द फर्म, हिज लोन विल बी पेड ऑफ आफ्टर ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आर पेड इन फुल। लाइबिलिटीज़ को पे करने से पहले हम लोन अकाउंट मेंटेन करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि पार्टनर का अगर लोन है तो इट विल नॉट बी मेंशन इन रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स की वाइफ का लोन है, उसके किसी रिलेटिव का लोन है, उसको हम मेंशन करेंगे, इट इज़ आउटसाइड लाइबिलिटी। लेकिन पार्टनर तो आपके फर्म का है तो इसलिए उसकी लोन को मेंशन नहीं कर देंगे इन रियलाइजेशन अकाउंट। उसके लिए एक सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा जहाँ पे उसका पेमेंट हो जाएगा। एंड एंट्री विल बी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। देन थर्ड जो बनाएंगे आप, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 1 पार्टनर क्या बनाया आपने? रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड नंबर 3 इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द सेम फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज देयर जो आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में पढ़ा है। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस सेम ट्रांसफर हो जाएगा आपका। व्हेन अ पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश टू क्लियर ऑफ, बट इसमें जब आपका लास्ट में टोटल करते हैं और उसका डिफरेंस निकालते हैं, जो बैलेंस आता है वो बैलेंस कैरी डाउन ना करके, अगर टू साइड में बैलेंस है तो टू फाइनल पेमेंट आ जाता है और फाइनल पेमेंट करके वो पार्टनर्स का बैलेंस कर देते हैं। क्योंकि अकाउंट डिस्पोज ऑफ हो रहा है, इट मीन्स आपका जो है डिसोल्यूशन है, इसलिए उसमें आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं आता है, टू फाइनल पेमेंट, और बाय साइड में आ जाता है बाय कैश बॉट इन। ठीक है, डिफरेंस आपको पता ही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसके और फिर उसको जो है हम कैश या बैंक अकाउंट में लेके जाते हैं। एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपकी जो है कैश बॉट इन हो रहा है तो वो बाई साइड आ जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपका वो हो रहा है पार्टनर्स को पेमेंट देना है तो वो बाई साइड आएगा, और अगर कैश बॉट इन हो रहा है तो वो डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट शोन हो जाएगा। देन जो हम नेक्स्ट बनाते हैं दैट इज़ कैश अकाउंट। वो जो नेक्स्ट बनता है वो क्या होता है आपका? कैश अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड ऑल द रिसिप्ट्स आर एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड। कैश और बैंक अकाउंट आपको पता ही है, कैश और बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? इट इज़ रियल अकाउंट। और इसमें जो रियल अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है? इट इज़ अ रियल अकाउंट। इसमें जो आप शो करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, वो आपके डेबिट साइड में आ जाएगा। इट मीन क्या हो गया आपका? डेबिट और ये आपका जो इसलिए आप कैश और बैंक अकाउंट जो भी बनाएंगे उसमें डेबिट साइड में जो मेंशन डेबिट साइड में जो मेंशन होगा वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद जो भी एसेट रियलाइज्ड हुई है उसकी वैल्यू को डेबिट साइड ऑफ कैश और बैंक अकाउंट को में मेंशन करेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर कोई क्रेडिट बैलेंस आया है तो उसको हम डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट मेंशन करेंगे। देन बाई साइड में पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट में आपका जो है बाय लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उनको जो भी पेमेंट करना है फाइनल पेमेंट वो शो हो जाएगा। तो ये अमाउंट जो है दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड क्लोज लास्ट ऑफ ऑल द, और सबसे लास्ट में इसको बनाते हैं और इस कैश और बैंक अकाउंट का टोटल इक्वलाइज हो जाता है क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ हो गई, एसेट रियलाइज हो गई, सारा पेमेंट करके हमारा जो है ये कैश और बैंक अकाउंट जो है इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं होता है तो आपका क्वेश्चन गलत है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिया है क्योंकि इसमें आपके चारों अकाउंट मेंटेन हो रखे हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है. See, A, B, and C were partners in a partnership firm. For partnership sharing profit in the ratio 2:1:1. Their balance sheet showed the following position on the date of dissolution. Creditors 40,000, bills payable 10,000, A's loan 20,000, Mrs. A's loan 16,000, workman compensation reserve 20,000. एंड देन कैपिटल A, B, and C की गिवन है 40,000, 20,000, 20,000. एसेट साइड में जो मेंशन है फिक्स एसेट्स 50,000, स्टॉक 60,000, डेटर्स 30,000, लेस प्रोविजन 2,000, फर्नीचर 20,000, गुडविल 18,000, कैश एट बैंक 10,000. गुडविल इज ऑल्सो एसेट. गुडविल भी को भी हम एसेट की तरह ट्रीट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी अमाउंट शो हो जाती है. देन सी द एडिशनल पॉइंट्स. ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू. ए फर्नीचर को टेक ओवर कर रहा है 20% लेस देन द बुक वैल्यू. तो जो फर्नीचर है आपकी इसकी अमाउंट है 20,000, इसका आप 20% लेस कर दीजिए, 4,000 माइनस हो जाएगा. जो फर्नीचर रियलाइज हुआ है वो 16,000 में रियलाइज हुआ है. देन फिक्स एसेट्स रियलाइज 32,000 एंड स्टॉक 55,000. जो रियलाइज्ड वैल्यू वो आपकी सोल्ड ऑफ वैल्यू जो आपने इसको शो करा है इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड में शो करेंगे. देन बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹5,000. बैलेंस शीट में जो गिवन है 2,000 का है. इट मीन्स बैड डेब्ट्स की अमाउंट 5,000 हो गई है, तो डेटर्स की वैल्यू 5,000 से डिक्लाइन हो जाएगी. डेटर्स की वैल्यू 25,000 रह जाएगी. जो रियलाइज होगा डेटर वो 25,000 पे रिलीज होगा. मैं रिलीज बोल रही हूँ, आपको पता होना चाहिए रिलीज मतलब सोल्ड ऑफ होना. देन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 3,000. ये आपका कैश से पे हो जाएगा क्योंकि इसके आगे नहीं लिखा है कि पार्टनर्स ने पे करा है. क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. तो वट एवर द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स 40,000 उसका 5% डिस्काउंट निकाल लेंगे 2,000. तो क्रेडिटर्स को 38,000 के अमाउंट में पेड ऑफ करा है. देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 6,400 फॉर डैमेज. ये हमारा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट. सी नेसेसरी अकाउंट. सब नंबर 1 इज रियलाइजेशन अकाउंट. 3 पार्टनर्स हैं A, B and C. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1. रियलाइजेशन अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड में आप सारी एसेट्स को शो कर दीजिए ऑन देयर बुक वैल्यू. क्वेश्चन देखिए बेटा. क्वेश्चन में जो एसेट्स है फिक्स एसेट 50,000 है, स्टॉक आपका 60,000 है, डेटर्स 20,000, प्रोविजन बाई साइड आएगा, फर्नीचर 20,000, गुडविल 18,000, कैश एट बैंक मेंशन नहीं होता है. ये सब हम उसको टू साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट मेंशन कर देंगे. टू फिक्स एसेट्स 50,000, टू स्टॉक 60,000, टू डेटर्स 30,000, टू फर्नीचर 20,000, टू गुडविल 18,000. ठीक है. और डेटर्स में जो प्रोविजन है वो बाई साइड आ गया, बाय प्रोविजन 2,000. नाउ सी ऑन द लाइबिलिटी साइड. आउटसाइड लाइबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स हैं 40,000, बिल्स पेबल है 10,000. एज लोन नहीं आएगा, इसके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन होगा बिकॉज ए इज़ द पार्टनर ऑफ द फर्म. और आपका मिसेज एज लोन है 16,000. तो ये सारी लाइबिलिटीज बाई साइड आ जाएंगी. बाय क्रेडिटर्स 40,000, बाय बिल्स पेबल 10,000, बाय मिसेज एज लोन 16,000. ठीक है. अब इसके बाद जो भी एसेट रियलाइज्ड हुई हैं, ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर है 20% लेस देन द बुक वैल्यू. ए ने फर्नीचर लिया है, फर्नीचर की वैल्यू थी 20,000, 20% इसका लेस होकर 16,000 में ए के अकाउंट में आ जाएगा. बाय जब 16,000 में ए के अकाउंट में मेंशन कर देंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट फर्नीचर टेकन ओवर 16,000. देन बेड डेब्ट्स फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 32,000, कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये कैश में रियलाइज्ड हो रहे हैं. 32,000, स्टॉक 55,000 और बेड डेब्ट्स 5,000 पे हैं, तो डेटर्स की वैल्यू 25,000 है. इसको हम बाई शेयर नोट कर देंगे. बाय बैंक अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स 32,000, स्टॉक 55,000 और डेटर्स आपके 25,000. तो 1,12,000 में कैश में ये एसेट रिलीज हो गई यानी सोल्ड ऑफ हो गई. Then next point, expenses of realization were 3,000. Creditors were paid at a discount of 5%. तो creditors 4,000 का 40,000 का 5% 2,000 था, 38,000 पे creditors आ गए. तो इसकी टू साइड मेंशन हो जाएगा. टू बैंक अकाउंट expenses on realization 3,000. देन और टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स आपने पे कर दिया 38,000. अब इसके अलावा देखिए आप और भी लाइबिलिटीज़ थी, दैट इज़ बिल्स पेबल, मिसेज एज लोन. इसके लिए कुछ भी मेंशन नहीं है, तो लाइबिलिटीज़ हैज़ टू बी पेड. सारी लाइबिलिटीज़ पेड होती हैं और उनके सेम वैल्यू पे पेड हो जाएंगी अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. इफ़ नथिंग एल्स इज मेंशन तो लाइबिलिटीज़ विल बी पेड ऑन देयर सेम वैल्यू. तो आपने मिसेज बिल्स पेबल को भी हम शो करेंगे 10,000 पेड ऑफ हो गया. मिसेज एज लोन भी 16,000 में पेड ऑफ हो गया 64,000. ठीक है. क्रेडिटर्स के अलावा ये
लाइबिलिटीज़ भी आपकी पेड ऑफ हो गई। देन लास्ट पॉइंट इज देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 फॉर डैमेज, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, टू साइड आ जाएगा। टू बैंक अकाउंट क्लेम अगेंस्ट द फर्म 6,000। तो हमने डेबिट साइड का टोटल किया तो वो ज़्यादा था और क्रेडिट साइड का टोटल कम था, तो डिफरेंस निकाला तो हमारा लॉस आ गया रियलाइजेशन पर, दैट इज़ 56,400। और इस 56,400 को हमने पार्टनर्स के अकाउंट में 2:1:1 में डिवाइड कर दिया। तो ए का लॉस हुआ 27,700, बी का लॉस हुआ 13,850 और सी का लॉस हुआ 13,850। नाउ सी द सेकेंड अकाउंट, मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज एज लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? ए लोन अकाउंट। लोन में जो ए की अमाउंट है लोन की, ये सी देखिए, एज लोन इज 20,000, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू द बाय साइड बाय बैंक अकाउंट। 20,000 ए का लोन है और उसको हम बैंक के थ्रू पे कर देंगे 20,000। देन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, कैपिटल अकाउंट का सेम फॉर्मेट है बेटा। कैपिटल अकाउंट में आपने मेंशन कर दिया बाय बैलेंस बॉट डाउन, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई 40,000, 20,000 एंड 20,000। देन बाय डब्ल्यू सी आर ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो गया क्योंकि ये रिजर्व है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है, वो आपका शो हो जाता है। अगर इसके ऊपर क्लेम होता तब हम उसको शो करते हैं रियलाइजेशन में, नहीं तो वो एज इट इज़ आपका ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो गया। बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट शो हो गया, दैट इज़ 10,000, 5,000 एंड 5,000। देन फिर जो भी एसेट पार्टनर ने टेक ओवर करी है, अगर कोई भी पार्टनर ने एसेट टेक ओवर करी है तो वो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है, और अगर कोई लाइबिलिटीज़ पेड करी है तो बाई साइड आता है। जैसे ए ने फर्नीचर को टेक ओवर किया था तो ए के अकाउंट में टू साइड में आ गया, टू रियलाइजेशन अकाउंट फर्नीचर टेकन ओवर बाय ए 16,000। देन रियलाइजेशन का लॉस ऑन द डेबिट साइड, प्रॉफिट होता तो बाई साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस आ गया आपका तीनों पार्टनर्स का। और उसके अलावा हमने टोटल करा तो टोटल में से हमने इसको माइनस करा तो ये टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट आ गया। तीन मैंने आपको बताया था कि बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा बिकॉज फॉर्म डिसॉल्व हो रही है। टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट लिख दिया 6,300, 11,150, 11,150। अब जो लास्ट अकाउंट मेंटेन होगा दैट इज बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट मेंटेन हो रहा है? वो बैंक अकाउंट मेंटेन हो रहा है। बैंक अकाउंट में जो शो करेंगे आप, सबसे पहले जो बैंक अकाउंट में आएगा टू साइड में, टू बैलेंस बॉट डाउन 10,000, ये आपका बैलेंस वो है जो आपकी इसमें गिवन है, कैश एट बैंक 10,000। इसको हम डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट शो कर रहे हैं। डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट में मेंशन हो गया टू बैंक अकाउंट 10,000। देन जो एसेट्स रियलाइज हुई हैं आपकी, जो एसेट्स रियलाइज हुई हैं, ये आपकी वैल्यू आई थी एसेट रियलाइज करने की। तो जो भी आपने एसेट रियलाइज करी रियलाइजेशन अकाउंट में, उस जो वो अमाउंट ही आपकी जो एसेट रियलाइज हुई थी दैट इज़ 1,12,000। इसको आपने डेबिट साइड में शो कर दिया बैंक अकाउंट के टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज 1,12,000। देन उसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट जो भी एक्सपेंसेस आपने जो कुछ भी रियलाइजेशन में कैश में पे करा है, टू साइड वाला वो सब बाई साइड आ जाएगा। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन ऑन द बाई साइड ऑफ कैश अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट ये क्रेडिटर्स बिल्स पेबल मिसेज एज लोन 64,000 ये भी अमाउंट आ जाएगी और ये क्लेम भी आ जाएगा। तो ये बैंक अकाउंट में तीन सब चीज़ें जो भी बैंक के थ्रू पेड हुई हैं, कैश के थ्रू पेड हुई है, उसको मेंशन कर देंगे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया 16,400, रियलाइजेशन अकाउंट क्लेम पे कर दिया 6,400, एक्सपेंसेस पे कर दिया 3,000। एंड देन बाय एज लोन अकाउंट, एक लोन अकाउंट 20,000 पेड ऑफ कर दिया आपने, उसमें शो करा था लोन अकाउंट में टू बैंक अकाउंट, तो वो टू साइड है तो यहाँ पे वो बाई साइड पेमेंट आ गया। एंड देन उसके अलावा जो पार्टनर्स का फाइनल पेमेंट है वो भी यहाँ शो हो गया। तो आप जब टोटल करेंगे तो जो आपका बाई साइड का टोटल है बैंक अकाउंट का, इक्वलाइज हो जाएगा टू साइड के टोटल से। एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड और आपका जो है आंसर्स करेक्ट है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। बाकी आप डाउट के सेशन जो भी आपका लगेगा उसमें आप पूछ लीजिएगा, क्वेश्चंस को करना शुरू करिए सो दैट यू कैन कम टू नो। ये लास्ट चैप्टर है आपका, इसके बाद आपकी पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगी और पार्ट बी के बाद फिर मैं आपका वॉल्यूम 2 कराऊंगी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।